Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of second year final paper of English, and this paper belongs to BEM PCHS Government College for Women Karachi. जैसे कि इंटर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के जो है वो पेपर सेकेंड ईयर इंग्लिश के होने वाले हैं, नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का ही है, और बाकी जो है वो मेडिकल वालों को जोलॉजी के बाद इंग्लिश है। तो ये काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि PCHS कॉलेज कराची के जो है वो इंग्लिश के पेपर को जो है सॉल्व करा दूं कम्प्लीटली, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इससे पहले काफ़ी और कॉलेजेस के पेपर मैंने डाले हुए हैं और उन सब के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है सेकेंड ईयर इंग्लिश की, सेकेंड ईयर के कॉलेजेस के पेपर की, तो वहाँ से आप बाकी पेपर्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQs को कि फ्रैंक आर्थर वॉज अ डैश। तो फ्रैंक आर्थर क्या थे? तो फ्रैंक आर्थर वॉज अ सिविल सर्वेंट, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। फ्रैंक आर्थर वॉज द राइटर ऑफ 20 Minutes with Mrs. Oakentop. Second है 20 Minutes with Mrs. Oakentop is notable for its skillful manipulation of suspense. Third is he was an eminent mathematician and philosopher. So who was an eminent mathematician and philosopher? So this was Bertrand Russell, who wrote Reflections on the Reawakening East. Fourth, a modern cosmopolitanism is based upon science and machinery. Fifth, the most harmful aspect of scientific technique is weapons of war. Sixth, he is one of the foremost American humorists of modern times. So this is James Galsworthy, who wrote The Day the Dam Broke. Seventh, Dr. Mallory, a man with white beard, looked like Robert Browning. This is in The Day the Dam Broke chapter. Eighth, The Day the Dam Broke is a good example of irony, humor, comedy, suspense. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास irony. तो आयरनी हम किसे कहते हैं? आयरनी इज एक्चुअली दैट इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स और एन इवेंट दैट सीम्स deliberately contrary to what one expects and it's often amusing as a result. ठीक है, मतलब कि जो एक्सपेक्ट किया जाए लोग उसके जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करें, दैट इज आयरनी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि द डे द डैम ब्रोक अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आयरनी के बाद आयरनिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स ही बताया गया है। नाइन्थ, ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक एट अ पब्लिक मीटिंग इन रावलपिंडी, सो इट्स लियाकत अली खान। टेंथ है अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवरसेल्व्स। तो ये है पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड से MCQs है। 11th, जॉन गैल्सवर्थी फादर वॉज अ प्रॉस्पेरस दैट इज सॉलिसिटर। 12th, he is a member of supporter of the Labour Party, believes in the principles of socialism. So he is the member and supporter of the Labour Party, believes in the principles of socialism, so that is liberal. 13th, John Galsworthy was described as a humanitarian moralist by Conrad. 14th, Einstein is regarded as the greatest mathematical physicist of 19th century. 15th, Einstein did not believe in human freedom because it is immoral. 16th, Einstein's political ideal is democracy. 17th, according to Einstein, the sound sense of nation had been systematically corrupted by 17th, according to Einstein, the sound sense of a nation had been systematically corrupted by, that is, school and press. 18th, Einstein regarded class differences as contrary to justice. 19th, Schopenhauer was a deeply pessimistic attitude towards human destiny. He was a German philosopher. 20, again, one's own gate means to go on one's way. 21, he was one of the most elegant writer who believes in the doctrine of art for art's sake. So he is Oscar Wilde. 22, Miller's character was applicable to the water rat because he was also not a fan. He was also a selfish person. 23, all the words a stage is an example of, all the words a stage a metaphor है।
24 है शेक्सपियर वॉज नॉट अ ड्रामेटिस्ट बट ऑल्सो एन एक्टर. 25 है सैमसन एगेनिस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ blank words, means there are no rhyming words at the end. 26 है the main theme of lines from Samson Agonistes is Samson's sacrifice. 27 है the length and meter of the lines of rhyme couplets are same as those of blank words. 28 है in let no ambition mock their useful toil. Ambition is let no ambition mock their useful toil. तो एम्बिशन से यहाँ पर मुराद एक जिंदा चीज़ों के लिए जा रही है. दिस इज एक्चुअली पर्सनिफिकेशन. 29 हेब्रिडीज आर द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. 30 the inability to preserve a lovely experience in the memory is atypical of the age of romantics. 31 in all languages culture light appears to be the symbol of good. 32 Greek heroes were believed to go after death to happy isles. 30 A Prison of Zante is written by Anthony Hope. 34 How old was Rudolf Rosendahl? 29 years old. 35 The traveling companion of Rosendahl to Rosenda was Anthony de Moivin. 36 The first name of Lord Burlesdon was Robert Burlesdon. 37 instigating factor behind Rosendahl's adventurous journey was a rescue mission. 38 the present sent to the King Rudolph was flowers. So the present sent to King Rudolph, I think ये वो प्रेजेंट है जो कि ब्लैक माइकल ने भेजा था, तो उसने एक बॉटल भेजी थी, बॉटल ऑफ वाइन. 39 है द कमांडर इन चीफ ऑफ द रॉयल ब्रिटानियन एस्मी was that is Marshal Stekens. 40 the king was imprisoned in the castle of Zenda. Next, these are the question answers. Then we have the word meanings here. To kick the bucket, a red letter day means. अच्छा, मीनिंग्स डायरेक्ट इसमें इन्होंने कर दिया है, नॉट बाय यूजिंग के, जो वैसे तो इसमें मैच द कॉलम करके आता है आपके पास, बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली जो है वो दे दिया है. तो रेड लेटर डे का मतलब होता है हमारे पास दैट इज अ मेमोरेबल डे, एक यादगार दिन. टू डाई इन हार्नेस, इसके अंदर टू डाई, टू डाई इन, दैट इज टू डाई बिफोर रिटायरमेंट. The bone of contention means appeal of discord for सात की जड़. Once in a blue moon, मतलब hardly ever, मुश्किल से कभी अगर कोई काम हो. In the nick of the time, मतलब exact time. To appeal of one's eye, that to be a dear one. लास्ट बच गया. टू किक इन द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना. देन उसके बाद और क्वेश्चन आंसर्स हैं. आई थिंक ये पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया उसको, बिकॉज देयर आर नो होमोफोन्स पेयर ऑफ वर्ड्स इन इट एंड एज वेल एज देयर इज, जबकि सवाल 2022 का ही है, मतलब पैटर्न, बट ये नहीं होगा आपका. उसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ हैं. इन्फ्लेशन एक इम्पोर्टेंट ऐसे इंटरनेट पर हो सकता है, एक इम्पोर्टेंट ऐसे ये दो. कैरेक्टर स्केच ये ओल्ड आते थे, इसमें अब कैरेक्टर स्केच नहीं आता, नरेशन आता है, जो नरेशन उन्होंने शायद दिया नहीं है, तो ये उन्होंने पैटर्न को बिल्कुल चेंज रखा हुआ. आई डोंट नो व्हाई. नरेशन तो कभी आता है, नरेशन आता है, ये नहीं आता. नेक्स्ट है कि रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़कर जो है वो जवाब देना है. द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स आर वंडरिंग अबाउट इन स्पेस, तो ये हमारे पास एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स से लिया गया है. तो फर्स्ट गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस. मल्टीट्यूड मीन्स दैट इज डायमेंशन. सॉलिटरी मीन्स होते हैं अलोन, अकेला. स्पेशियस, इसके मतलब के स्पार्स, बिखरा हुआ.
स्प्लेंडेड मीन्स अमेजिंग। आइसोलेशन मतलब होता है कि दूर दूर होना, मतलब सेपरेटेड। रेयरिटी किसी चीज का बहुत कम होना, स्कार्सिटी। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एवरेज, दिस इज एन एडजेक्टिव। ओशियन, दिस इज अ नाउन। एम्प्टी, दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव। मिलियन, दिस इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज द नंबर। व्हेन, दिस इज अ प्रोनाउन। थ्रो, दिस इज अ प्रेपोजिशन। इवेंट, दिस इज अ नाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास BAM PCHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पेपर को यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया मैंने। आई होप सो लेक्चर पसंद आया होगा आपको। तो इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।